Okay. Okay, so it is completely a unit which is will give you like what how these financial units work and what exactly is required to have a, I mean, if you are doing something like in finance, or even if you are having a complete knowledge of these subjects is very important. I'll brief you like what exactly we will be covering in this. Just give me a second. Okay. I think this is not, yeah. Okay. So what exactly is a financial market? If any one of you could tell, I mean, we have heard of a word market. Okay. What is a financial market? If any one of you can just give me a, I mean, what is a financial market? Financial market से बेटा आपको क्या समझ में आता है? Anyone? Oh, okay. See, financial market is something where we cover all the financial institutions. Okay. अभी कैसे रहता है अगर हम मार्केट के बारे में पता करते हैं हम बोलते हैं ना आजकल मार्केट डाउन है आप आई मीन इफ वी लुक इनटू द this security markets and all that. So financial market is something which compromise of all these things: financial institution, financial intermediaries, financial institutions कौन कौन से हैं हमारे, ठीक है. Then comes the financial markets. Markets कैसी रहती हैं हमारी, either they are regulated or they are the unregulated one. So all these things come under the first term, that is the financial market. Okay, so the first unit will give you like what exactly is the financial market. पूरा financial system हमारा कैसे work करता है, उसमें क्या क्या किसका role रहता है, हमारा पूरा जो first unit रहेगा ना बेटा उस पे रहेगा. Okay, that will our basic concepts of the financial system. Okay. And then we will cover like what is the bank this money market and the capital market. जो हमारा second unit रहेगा वो पूरा उस पे रहेगा बेटा money market क्या होता है, how it work and what is a capital market. ठीक है, ये difference बेटा वैसे भी मैं आपको बता दी हूँ. कभी भी अगर आप किसी भी इसमें जाते हो इंटरव्यू में, this is a very important thing. They are going to ask you, okay, what is a money market and what is a capital market. बिकॉज ये जो टर्म्स होती है बहुत जनरल रहती हैं. ओके, तो इसमें हम लोग ये सब पढ़ेंगे. और एक चीज और बेटा, जब हम फर्स्ट यूनिट करेंगे जो सिलेबस में दिया है उसके अलावा भी छोटे छोटे नोट्स रहते हैं. जैसे अगर आप देखोगे क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है. अभी इतना तो समझ में आता होगा बेटा फॉरेन एक्सचेंज क्या है. आई थिंक यू ऑल नो व्हाट इज अ फॉरेन एक्सचेंज. यस मैम. ठीक है ना. तो इसी तरह बेटा फॉरेन एक्सचेंज होती है. फिर इतना भी समझ में आता है स्टॉक मार्केट. एटलीस्ट यू हैवंट वर्क इन दैट और यू हैवंट मेड एनी ट्रांजैक्शंस excuse me in those, but still you know like what is a security market. ठीक है ना. अभी कैसे रहता है, if you look into the post scenario, that is before the 90s or before this, I mean the role of this financial markets were very low. बहुत कम रहता था बेटा, बिकॉज लोग इसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहते थे. उसमें क्या रीजन रहता था, एक तो कैसे था पहले, कैसे मैंने आपको बताया था, वी हैव ओनली एंड ओनली यू कैन सी द सिंगल अर्निंग्स. पहले हर घर में बेटा कैसे रहता था, सिंगल अर्निंग्स रहती थी. I mean, one person is the earning member and rest of them are dependent upon him. ठीक है ना. And secondly, I mean, for these things now you can understand like we have a only like very limited liabilities there. Only one or two kids are there, so other liability is quite limited. And we spend luxuriously. Okay, but if we look into the past scenario, तो भी कैसे रहता था. I mean, responsibilities are a lot. Okay, so people prefer to be very risk averse. They don't want to spend on something which is very risky. तो उनको कैसे लगता था कि ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जितनी भी सिक्योरिटीज हैं, स्टॉक मार्केट है, ये बहुत रिस्की है. दे डोंट वांट टू एंटर इनटू ऑल दिस थिंग्स ना, बिकॉज वो उनको ये रिस्की लगता था. तो वो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ करते थे, बैंक्स में करते थे. ठीक है, हमने एफडी में इन्वेस्ट कर दिया. दीज आर द थिंग्स व्हिच दे फील दिस इज वेरी सिक्योर. ओके, इजंट इट. टेल मी, इजंट इट द सिनेरियो. ऐसा नहीं होता था क्या पहले. यस मैम. अभी कैसे है, अभी अभी हमने गवर्नमेंट ने भी कि फाइनेंशियल मार्केट्स में हमारा रोल बढ़ जाए. तो व्हाट दे हैव स्टार्टेड अप विद दिस, like they have started up with the this market dealings. How they have started up with those, like
Now the banks are playing a crucial role in the stock market. So how the banks are playing a crucial role? Banks कैसे play करते हैं बेटा crucial role stock market में? टेल मी। बैंक्स का बेटा अभी आपने सुना है पहले कैसे हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते थे, तो हम लोग कैसे खुद नहीं करते, अभी कैसे रहता है बैंक के, आपने कभी सुना इंडेक्स फंड्स रहते हैं, देन देयर आर हाई प्रोग्रेसिव फंड्स, दिस टाइप्स ऑफ फंड्स रहते हैं, हम बोलते हैं ना हमने बैंक के फंड में लगाया है, वी डोंट से वी स्पेंड ऑन द म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल दैट, व्हाट वी से वी हैव इन्वेस्टेड इन टॉप 50, वी हैव स्पेंड ऑन दिस, ठीक है ना। हर बैंक अपना म्यूचुअल फंड का एक अलग से एक सिस्टम रन करता है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज हमें क्या लगता है कि बैंक के पास बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं who have those knowledge, okay, they have the knowledge of the stock market and all, तो हमें लगता है कि हम उनके बिहाफ पे, I mean if they on behalf of us invest, अगर वो हमारे बिहाफ पे इन्वेस्ट करेंगे, it will be very very less costly and it will be very लेस रिस्की, ठीक है ना। अभी हमें कैसे लगता है कि ठीक है मैं अकेली अगर इन्वेस्ट करूंगी तो मेरा फंड कल को डूब जाएगा अगर मैंने ध्यान नहीं दिया। बैंक के पास कैसे, उनके पास एक्सपर्टीज होती है, सो माय फंड्स विल बी मोर सिक्योर। ऐसा लगता है या नहीं लगता बेटा? लगता है मैम। ठीक है ना। तो इसी तरह से बैंक्स के रोल बढ़ गए हैं, बिकॉज द थिंग इज अभी कैसे बेटा इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज पहले कैसे था इन आवर कंट्री वी सी मोस्ट ऑफ द पीपल्स वर आई मीन वर ड्रिवन बाय द एग्रीकल्चर। पहले कैसे था एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स, ओके। नाउ यू थिंक आई मीन एग्रीकल्चर है, बट अभी कैसे बेटा बहुत सारी इंडस्ट्रीज में लोग कर रहे हैं, क्योंकि कैसे वी हैव मूव टू द अर्बन सोसाइटीज, ओके। Earlier we were living in the rural sector, so our needs were limited and our financial security, I mean जो हमारे पास availability था वो भी कम था। अभी कैसे विद द पैसेज ऑफ द टाइम वी हैव मूव्ड ऑन टू दीज थिंग्स। तो अभी अगर इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो गवर्नमेंट ये तो नहीं है ना कि रातों रात कहीं से पैसा आएगा, फ्रॉम वेयर दे विल गेट द मनी, दे विल गेट द मनी फ्रॉम योरसेल्फ ओनली। आपसे ही पैसा लेंगे ना बेटा, और तो कहीं से नहीं ले सकते वो, ठीक है ना। तो इस वे से ठीक है। आई जस्ट शेयर अ स्क्रीन, जस्ट अ बच्ची, जस्ट अ सेकेंड। Now I'll share the screen and I'll brief you about this, okay? Just give me a second. I think my net is down, so I'm not able to download the file. Maybe it require time. Just a second. Let me try once again. Otherwise, I'll just give you the description right now like this only. और मैं PDF आपके साथ बेटा बाद में शेयर कर दूंगी, because वो PDF डाउनलोड हो गया है, ठीक है। Now it's is it visible? Is it visible, beta? Yes ma'am. Okay, fine. Yes ma'am. See, what we will start with is the financial system. If you can see, as I told you, like earlier, we have limited scope with the agriculture and all that. Now we say economic development. See, whenever we say of the economic development of any nation, whichsoever, either it is US or India or whatsoever country it is reflected by the progress of the economic units. अभी हमें कैसे पता चलता है कि वो कंट्री डेवलप्ड है, डेवलपिंग है? हम कैसे देखते हैं बेटा? वो हम देखते हैं उसके इकोनॉमिक यूनिट से, उसकी इंडस्ट्री कितनी डेवलप्ड है, उसका गवर्नमेंट सेक्टर कैसा है, और वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। इसी से हमें पता चलता है ना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस कंट्री में कितनी है। सो whatever it is, like performing these activities, these unit will be placed in, like you have some units that are having surplus funds, then there are some units which are having the deficit funds.
So what is the surplus funds? Means the funds which can be used for the economic development of any country. अभी कैसे रहता है, some country, you can say some institution have those funds with them which they can give you for your deficit. अगर आपके पास आपको funds require हैं आज के time में, if you want to spend on something, like if you have planned, okay, I have to work on this industrial project, or I have to set up with some industry, and then you have to find out the funds, the person or the institution which is having those funds with that. So what is that funds? कहाँ से लोगे आप? Surplus funds कहाँ से मिलते हैं बेटा आपको? Tell me the sources. If you are looking up for funds for some purpose, so you require some type of you can say funds. So कहाँ से लोगे आप वो funds? Banks, Ma'am, from financial market, institutions. Okay, I will ask for loan. okay, banks is the one source, and what's exact other? बैंक के अलावा कहाँ से लोगे बेटा? Cooperative फाइनेंशियल societies. इंस्टीट्यूशन, हाँ, अजय क्या बोल रहे हो बेटा, दोबारा बोलना. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, Okay, financial institution means what बच्चे? Cooperative societies से भी लोन. हाँ, cooperative society. Okay, financial institution में हम क्या क्या लेंगे अजय? फंड्स ले सकते हैं. हाँ, फंड्स ले सकते हैं बेटा. मैं एग्जांपल पूछ रही हूँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की. बैंक्स भी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है, ठीक है ना. और क्या है उसमें, और आपकी इंश्योरेंस कंपनी वो भी लोन प्रोवाइड करती है, वो भी देती हैं लोन्स, ठीक है ना. दीज आर द थिंग्स व्हिच वी कैन कम एंड वी विल रीड अबाउट दिस. नाउ कमिंग ऑन टू द फाइनेंशियल सिस्टम, द वर्ड सिस्टम मींस in the term of financial system implies a system of complex and closely connected or interreliant institutions, primary institutions, claim and liability in the economy. Means everything or any institution which are working very closely with the other institutions. Means एक funds जिसको चाहिए वो, और एक funds वो है जिसके पास है. So they are working very closely so that they can meet the needs of each other. The financial system is concerned about money. Okay, everything that is related to money will come with the financial this system. We understand that. Then is the credit. Credit means the loans which are being provided to the people. And the finance. Finance here means like whatsoever sources of finance we can, from where we can procure the funds. So all these things are interrelated. Okay, ये सब चीजें almost interrelated है. और हम कैसे financial system बोलते हैं तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, money कहाँ से लेना है, पैसा कहाँ से आ रहा है. So we closely take all these three terms as a equal thing. So what does the finance means in the financial system? It is a system that allows a transfer of money between savers and the borrowers. Means if you have funds with you, so you have saved your funds, either you are working in a household sector, तो कैसे रहता है, अगर आपके पास सेविंग है, अगर आप उस फंड्स को सिर्फ अपने पास रखोगे, does it be profitable for you? No. So it will be only profitable to you if you invested somewhere. अभी इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे? आज के टाइम में आपके पास 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा था, ठीक है, आपने क्या किया, वो फंड्स कहाँ पे किया, बैंक में प्रोवाइड किया. देन आई गो टू द बैंक, आई रिक्वायर्ड 3 लाख रुपीज. देन दैट फंड्स which you have invested at some interest will be given to me at a higher interest. ठीक है, तो उससे क्या हुआ बेटा, आपका सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज हो. अगर आप घर पे ही रखते तो क्या आपको उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता? कभी भी नहीं मिलता. So this is like how financial system work. It works as a link between the person who requires the funds and the person who is having that availability of funds. एक वो जिसको पैसा चाहिए, दूसरा वो जिसके पास फंड्स है नहीं. तो वो उन दोनों के बीच में एक लिंक की तरह बेटा काम करता है, ठीक है. So financial system you can say it is a set of complex and closely interrelated फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. इसमें सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी आते हैं, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, ठीक है. अभी उन सब का क्लासिफिकेशन भी हम आगे करेंगे, ठीक है. अभी अकॉर्डिंग टू फ्रैंक मिल, व्हाट इज द डेफिनेशन व्हिच इज गिवन, like financial services and system have described it financial system as a set of complex and closely interconnected financial institutions. ठीक है, closely work करते हैं. And then these are what they comprise of markets, financial markets. So we will learn like what are the financial markets, then what are the instrument, various types of instrument are there, मतलब जिससे आपको funds मिल सकता है. What are the various services which are being provided. So we will read all about this in the financial system. So
You can say the process and the procedure used by an organization. जितना भी हमें फंड्स लेने के जो भी प्रोसीजर आप फॉलो करते हो बेटा, वो भी हमारा किस में आता है, फाइनेंशियल सिस्टम के अंडर आता है. So you can say finance and money, if they are almost same, मनी और फाइनेंस सेम रहते हैं क्या बेटा, मतलब दोनों का? Tell me. Here it means like finance is basically, you can say, money as well as the sources of procuring the funds. ठीक है, हम यहाँ पे जब भी फाइनेंस की बात करते हैं उसका मतलब होता है पैसा, और पैसा हम कहाँ से ले सकते हैं, कौन से सोर्स से हम वो पैसा ले सकते हैं, वो दोनों चीजें हमारी किस में आती हैं, फाइनेंस में होती हैं. ओके, नाउ फाइनेंशियल सिस्टम यू कैन से व्हाट इट डज फॉर यू. क्या करता है बेटा फिर वो आपके लिए? Financial system, you can say, it works as a, you can say, the purpose is like to allocate the saving efficiently in an economy to ultimate user. Ultimate user कौन होगा बेटा आपका? मीन्स जिसको वो फंड्स चाहिए. ठीक है, तो फाइनेंशियल इसमें सिस्टम क्या काम करता है, वो मनी जो आपके पास अवेलेबल है या बैंक के पास अवेलेबल है, वो उसको प्रोवाइड करता है जिसको उसकी जरूरत होती है. सो दिस इज हाउ द फाइनेंशियल सिस्टम वर्क्स. इज इट क्लियर व्हाट इज अ फाइनेंशियल सिस्टम? Yes, ma'am. Okay, now coming on to the functions of financial system, like we have understood, okay, what is finance, what is money, what is a financial institution. Now we need to understand like what are the functions, like why this system works. First is the provision of the liquidity. So the main function, if you look at the financial system, is to provide money and everything that is related to money for the production of goods and services. See, if you have a plan in your mind, अगर आज के टाइम में आप एक प्लान करते हो कि ठीक है मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, it doesn't go along with your money. Okay, I mean आप ऐसा नहीं है आपने दिमाग में सोचा कि अच्छा मुझे तो ये फैक्ट्री लगानी है, तो आप नहीं बना सकते ना. You need to arrange those funds, to you need to provide for those funds. फंड्स तो अभी क्या रहता है, मैंने आपको एक बार पहले भी बोला था, बट फंड्स आर, यू कैन से, द लाइफ ऑफ एनी बिजनेस. ओके, whenever you are investing, whenever you are planning out something, the main starting point for any organ, I mean either you are thought of any small, अगर एक आपको बहुत छोटी सी शॉप भी चाहिए तो बेटा उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट सबसे पहले आपको फंड्स तो चाहिए ना. सो यू नीड टू प्रोक्योर दोस फंड्स. ठीक है, सो आपको कैसे फंड्स लेना बेटा, ये मेन फंक्शन होता है फाइनेंशियल सिस्टम का, ताकि आपको प्रोवाइड कर सके मनी जिसको आप यूज करो अपने प्रोडक्टिव पर्पस के लिए. प्रोडक्टिव पर्पस हियर मींस कि जिसको आप अपने बिजनेस के आइडिया में आपने वो फंड्स लगाए, अपने बिजनेस के लिए आइडिया के लिए वो पैसा लिया बैंक से और उसको यूज किया. सो हियर व्हाट फाइनेंशियल सिस्टम डू इज लाइक दे प्रोवाइड द मनी. ठीक है, किसको प्रोवाइड करते हैं, टू प्रोवाइड देम द लिक्विडिटी, जिसको पास शॉर्टेज है उस मनी का. ओके, तो लिक्विडिटी हो गया ना, जिसके पास जरूरत थी, they provide them with the money, and the person who is having the surplus of that money is able to lend that money. अभी आप घर बैठे हो, आज आपको तो नहीं पता चलेगा ना कि किसी को 10 लाख रुपए की जरूरत है. If you have that surplus and you go and invest in either in banks or in any financial institutions, so that person will contact that financial institution or the bank, and then they can get the funds from there only. So here the financial system plays the role of the liquidity. So they are providing the money to the person who is in the need of that. Is it clear? Yes, Okay. ma'am. Then coming on to the encourage the saving. See, encouraging saving here means like you can say inbuilt I mean in Indians we have an inbuilt feature of saving. ठीक है, जब हम छोटे होते हैं तब से हमें सिखाया जाता है कि ठीक है कुछ तो सेविंग करके रखो. दिस इज द थिंग विच यू आर बीइंग टॉट व्हेन वी आर वेरी स्मॉल. ओके, तो हमें वो चीज सिखाई जाती है. सो क्यों बोलते हैं बेटा सेविंग के लिए? टेल मी, सेविंग का क्यों बोलते हैं बेटा आपको? एक सिंपल घर की एग्जांपल पूछ रही हूँ. आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं, I mean whatsoever it is, 500,000 whatsoever, you always have the habit of saving something or not? Simple yes or no? Yes, Yes, ma'am. For ma'am. emergency fund, we can say Yes, we should yes. have some backup with us. Yeah, you
Yes, you should have some backup, and plus we are always like okay, we should I mean everyone have some small dreams or something like that. Okay, we save sometime. Okay, let's take an example. You save sometime money. Okay, 2 month में मम्मा का बर्थडे आ रहा है, I should save some money. Okay, मेरे friend का बर्थडे आ रहा है, I should save some money. So this is the habit we do in our normal practices. But why we do it in the industry, I'll explain you. Like with financial progress and innovation in financial technology, the scope of portfolio choice has improved. अभी कैसे रहता था बेटा, पहले कैसे रहता था, हमारे पास कैसे लिमिटेड चॉइसेस रहती थी कि अच्छा हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करें. अभी कैसे, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, पहले कैसे हम सिर्फ और सिर्फ बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाहते या बहुत सिक्योर्ड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते थे. बट अभी क्या है, वी हैव अ you can say a wide scope of a पोर्टफोलियो में भी कैसे रहता है, अभी आप हो, जब भी आप जॉब स्टार्ट करोगे, देन यू आर लाइक यू कैन टेक द रिस्क बिकॉज यू आर एट अ वेरी यंग वेरी यंग स्टेज, एंड आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ नहीं रहते. अभी आपका कुछ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आप क्या सोचोगे, ठीक है यार म्यूचुअल फंड में बाद में, मैं अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है मैं इस शेयर में इन्वेस्ट कर लेता हूँ, मैं डेट में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ. देन यू कैन प्लान आउट द थिंग, ठीक है ना. तो आप उस हिसाब से जो फंड्स रिस्की रहेंगे, आप देखोगे नहीं यार रिस्की तो है, बट इट हैज अ वेरी वाइड स्कोप ऑफ अ प्रोग्रेस, ठीक है ना. इसमें प्रोग्रेस का अच्छा स्कोप है, तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर लेता हूँ, बिकॉज नाउ द पोर्टफोलियो इज बीइंग विद यू. ठीक है, अभी आप अपने हिसाब से सोच लोगे कि ठीक है इसमें तो 5 साल में मेरा पैसा इतना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, उसमें तो मेरा बहुत कम होगा. देन यू स्टार्टअप, ओके लेट टेक द चांस एंड आई विल टेक दैट थिंग. Then coming on to the middle aged people like us, then what they will think of, no, we have some liabilities. Okay, let's go for the mutual funds, or you can say the funds which are being with the banks and all that. So we can invest in that. Okay. Then coming on to the person who is at a pension stage. Pension वाले लोग क्या करते, नहीं बाबा इतना रिस्क कौन लेगा, एफडी में पैसा लगाया है, पोस्ट ऑफिस में पैसा लगाया है, ठीक है उसी से हमें इंटरेस्ट आ जाएगा. Now I have given you a practical example of 3 stages of your life. Okay. एक है जो बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, एक है जो मिडिल एज है वो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं कि एंड थोड़ा ग्रोथ भी चाहते हैं. बट जो फाइनल स्टेज रहता है एट द पेंशन स्टेज, दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, दे आर वेरी हैप्पी विद द वेरी लिमिटेड इनकम दे आर गेटिंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस की ठीक है यार हमारा जितना पैसा है उतना इन्वेस्ट है उतना तो हमें आ जाएगा. दिस इज द थिंकिंग दे हैव. So what financial system is providing you is they are providing you with a scope. They are providing with you a different type of portfolios for different age groups, and you can invest your money according to your whatsoever you have in your mind. Okay, you can आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि मुझे किस में इन्वेस्ट करना है. What is the thing which I want? Either I want growth, either I want कि ठीक है मुझे ग्रोथ चाहिए इस टाइम पे, तो मैं थोड़ा रिस्क भी ले लूंगा, और either I don't want to take a risk. What I can do is कि ठीक है मुझे रिस्क नहीं लेना है, मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है बाबा थोड़ा लिमिटेड इनकम में. So you are provided with various type of portfolios and you can match according to your needs. Is it clear? So this is how your saving habit is being encouraged, so that you are able to provide to the growth of the इकोनॉमी. ओके, अभी कैसे रहेगा, आप इकोनॉमी की ग्रोथ में ही हेल्प करोगे ना, अभी स्टॉक में लगाओगे तो कैसे रहेगा बेटा, ऑब्वियसली दैट इज वर्किंग आउट फॉर द इकोनॉमी ओनली. क्लियर? So these things are like very like why these financial institutions are coming into the things and why these work over there. You need to have a clear understanding of that. Then coming on to the mobilization of saving. What is the mobilization of saving means? Okay, I have the funds with me whatsoever. Okay, मेरा कैसे है, मेरा monthly income है like 1 lakh rupees, and then I thought of okay I have those money with me, but I have a very limited expenses, that my expenses are up to the limit of 60,000. Then I have a saving of 40,000 per month that is with me. So if I keep that money along with me, is it of any use? No, it is not. So what I go for the various types of, you can think of like, okay, I invest some amount in the banks, then I go to the mutual funds, or I invested some amount in the stock market. So this is how I am mobilizing my savings. तो वो आपको कब मिलेगा, जब एक कंपनी का, एक कंट्री का बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा होता है, तो आपके पास अपनी सेविंग्स को मोबिलाइज करने का बहुत ज्यादा चांस रहता है. सो द पर्सन्स
who are basically having deficient funds may be कि अच्छा ठीक है आपको कुछ नया business set करना, or maybe you have already established your business and now you are thinking of okay I have to basically largen up my scope, or you can say I have to broaden up my scope for the business. मुझे अपनी कंपनी के expansion करना है, उसके लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए भी मुझे मिल जाएगा if I am able to mobilize the savings in the economy. Then comes the size transformation function. Size transformation function here means like, okay, whatsoever, like we are almost 20 people here. Okay, let's take a very small example. We have 20 people here and each of us have a saving of 4,000 rupees per month. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है. तो अगर वो 4,000 रुपये बेटा अगर हम आपस में मतलब देखें तो अगर हम कहीं मार्केट में लगाएं या कहीं पे लगाएं तो बहुत कम पैसा मिलेगा. Then what we do is we all the 20 of us go to an institution and we have invested over there. हमने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, या आप ये बोल लो कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी में हमने वहां पे एक बैंक के पास गए, उसमें हमने उनके पास स्टॉक फंड्स थे, उसमें हमने इन्वेस्ट कर दिया. अभी वो ही हम अगर 4-4 हजार रुपए लगाते तो कम था. अभी 20 लोगों के कितने हो गए, अप्रोक्सीमेटली 48,000 रुपीज हो गया बेटा हमारा. हमने वो 48,000 वहां पे इन्वेस्ट किया. अभी क्या होगा, वो 48,000 को जब वहां पे लगाया जाएगा तो उसका इंटरेस्ट ऑब्वियसली ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा बच्चे? आएगा ना, क्योंकि आप इंडिविजुअली सेट करोगे तो बेटा कैसे रहेगा, आपका रिस्क भी ज्यादा रहेगा, देन आपका फ्लोटेशन कॉस्ट भी रहेगा, मतलब आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस भी ज्यादा रहेंगे. बट अगर हम सब लोग मिलके एक जगह इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, वो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी. सो दिस इज हाउ द साइज ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, स्मॉल यूनिट से लेके हम एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करते हैं सो दैट द functions are being fulfilled. Okay, then is the maturity transformation function. What is a maturity transformation function means? Like any financial intermediaries, what they do is they accept deposit from the public in different maturities. ठीक है, जैसे अभी हमारे डिफरेंट फंक्शंस रहते हैं बैंक के लिए. अगर हम देखें, मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्संस रहते हैं जिनको इन्वेस्टमेंट करना रहता है, उसी तरह बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ पर्संस रहते हैं जिनको डिफरेंट टाइप पे पैसा चाहिए रहता है. ठीक है, अभी अगर आप हो, आपके पास मान लो आज के टाइम में पैसा, तो आपको इतनी जल्दी फंड्स नहीं चाहिए, क्योंकि आपको कैसे लगता है कि ठीक है बाबा मुझे इतना नहीं है, ठीक है आई कैन इन्वेस्ट इट फॉर 3 years. ओके, then coming on to me, I thought of okay no, I require 2,000, I mean after 1 year I have to plan out something or maybe a house or something, so मुझे 1 साल के बाद पैसा चाहिए. जो हमारे ओल्ड एज पीपल होते हैं वो ऐसे मेच्योर फंड्स पे कम लगाते हैं. वो क्या सोचते हैं कि ठीक है मुझे एक रेगुलर इनकम पेंशन फंड्स में लगाएंगे या ये सब में. सो मेच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन मीन्स कि अकॉर्डिंग टू योर नीड आप अपना फंक्शन देख के वैसे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मेच्योरिटी वाले अमाउंट पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है. ठीक है, then is the risk transformation function. So what is the risk transformation functions mean? Tell me. Tell me what is risk transformation? रिस्क को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बेटा? हाँ, क्या बोल रहे हो बच्चे? Please repeat the word risk. Yeah, risk transformation. स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. Okay. See, as a risk transformation mean कि बहुत सारे, अगर बेटा मैंने आपको बोला ना कि अगर आज के टाइम में देखें ना, स्टॉक मार्केट में अभी भी बहुत लोगों को क्या लगता है, नहीं बहुत रिस्की है, वहां पे इन्वेस्ट किया तो पैसा डूबने के चांसेस ज्यादा हैं. सो दे डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क, दे डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क. तो वो क्या करते हैं, अभी मैंने आपको क्या बोला कि अगर मुझे आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो मैं क्या बोलती हूँ, अच्छा ठीक है बैंक के जो फंड्स है ना वहां पे लगाते हैं, बैंक का टॉप 50 रहता है, देन वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फंड्स विच आर बीइंग रेगुलेटेड बाय द मार्केट, तो हम वहां पे इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमें क्या लगता है वहां पे हमें वही सर्विसेज हमें एक एक्सपर्टीज से मिलती है, वो इस फील्ड में एक्सपर्ट है, तो मेरा जो रिस्क है वो कम हो जाता है. दिस इज नोन एज द रिस्क ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, यस. और
क्या रहता है, अगर आप में अकेले जाओगे, मैंने अभी एग्जांपल दिया था बेटा, अगर हम आप अकेले इन्वेस्ट करते हैं, आपने अलग में फंड में इन्वेस्ट किया, मैंने अलग में किया, और आई मीन किसी ने अलग में किया, तो उसमें क्या हो जाएगा कि हम सबका रिस्क जो है वो ज्यादा है। रादर देन वी हमने क्या किया, सबने कलेक्टिवली बैंक के पास में से एक फंड ले लिया, ग्रोथ इक्विटी और व्हाटसोएवर इट इज, ठीक है, हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या हो गया, वो रिस्क रादर देन सिर्फ मेरा रहने की बजाय हम 20 लोगों में आपस में बट गया, तो रिस्क कम हो गया ना बच्चे हमारा। दैट इज नोन एज Yes, द ma'am. रिस्क ट्रांसफॉर्मेशन। Then is the allocation of funds. So what is the allocation of funds here means, like you have the funds, as I told you, that the person who is having the surplus fund is able, like is going to the, I mean उसने बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, then बैंक according to the needs कि किसको कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो उसको एलोकेट कर देता है उस पर्सन को, ठीक है, द पर्सन हु इज इन नीड इज बीइंग एलोकेटेड विद द फंड्स व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय दैट। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, 4 चीजें होती है फाइनेंशियल सिस्टम में। एक होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देन इज द फाइनेंशियल मार्केट, देन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज। हम एक एक चीज को बेटा पूरा उसमें पढ़ेंगे, लेंथ पे पढ़ेंगे। एंड बेसिकली द फर्स्ट थिंग दैट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अभी समझ में आया किसी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है बेटा? Any company which is, you can say, is engaged in the business of dealing with the financial and monetary transaction, ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूट मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में डील करता है, लाइक डिपॉजिट ऑफ मनी, गिविंग लोन, करेंसी एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, उन सबको हम किस में बोलते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा बेटा? आपके बैंक्स आएंगे, इंश्योरेंस कंपनी आएंगी, ब्रोकरेज फर्म आएंगी, इन्वेस्टमेंट डीलर आएंगे, ये सब क्या है? आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां से आपको फंड्स मिलता है जब आपको रिक्वायर्ड होता है। बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब हम इंडिया में देखते हैं, एक होते हैं हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, एक होते हैं हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सॉरी, बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स तो बेटा आपको पता है, व्हाटसोएवर द बैंक्स का तो आपको अच्छे से पता है, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, आई मीन वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक, एग्रीकल्चर बैंक के लिए नबार्ड, ये वो बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स, आई मीन अकॉर्डिंग टू नीड्स भी हैं, अगर आपको इंडस्ट्रियल बैंक्स हैं वो भी हैं। सो व्हाट वी अंडरस्टूड बाय द बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हियर मींस दैट कमर्शियल बैंक व्हिच इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक and offer security. Okay, पहले हम जाते थे बैंक में, most of the time if you have looked into that, they provide you with the various types of the functions. Okay, so here banking institution, all of you know the banks which is accepting money and giving you the loans. Okay, clear? Now coming on to the non-banking financial institutions or non-banking financial companies, they are like the financial institutes that offer various banking services but do not have a banking license. प्रोवाइड तो वो भी आपको लोन ही करते हैं, बट उनके पास बैंकिंग का लाइसेंस तो नहीं होता ना, नहीं होता ना बेटा? No, ma'am. ठीक है, तो उसमें कैसे रहता है, वो आपको लोन तो प्रोवाइड करते हैं बट दे डोंट हैव दोस, यू कैन से द बैंकिंग लाइसेंस विद देम, ठीक है। अभी इसमें कैसे रहता है बेटा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, जैसे अभी बैंकिंग को कौन रेगुलेट करता है? बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेशंस कौन देता है बेटा हमें? अगर आप देखो स्टेट बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, कोई भी बैंक, उसको रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है बेटा इंडिया में? गवर्नर। कौन होता है बेटा? गवर्नर नहीं, Reserve Bank of RBI. Yes, RBI is the primary regulatory authority which is regulating the banks. Okay, banks are being Yes. regulated by the RBI. सो द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी कैसे रहता है? अलग अलग रेगुलेशंस रहती हैं। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर द वेरियस गवर्निंग प्रिंसिपल, बट ऑल्दो दे आर नॉट गवर्न्ड बाय द आरबीआई। आरबीआई गवर्न नहीं करती, बट उनकी गवर्निंग अथॉरिटी कौन रहती है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है बेटा? We will, I mean, explain each and everything in a very descriptive manner. अभी मैंने सिर्फ आपको इसमें बताने के लिए, देखो बेटा कैसे है। सबसे पहले हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस था, ठीक है, वो मैंने आपको बताया कि कैसे रहता है। अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी आगे रहता है रेगुलेटरी, नॉन रेगुलेटरी, इंटरमीडियरीज, नॉन इंटरमीडियरी, बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, बट वी विल लर्न व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, देन वी हैव द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कैसे रहता है?
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे रहता है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी फाइनेंशियल मार्केट्स क्या रहता है, यू कैन से द मार्केट आर मीडियम थ्रू विच पीपल कैन ट्रेड, और यू कैन से बेसिकली जहाँ पे बाय और सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती है उसको आप फाइनेंशियल मार्केट बोलते हो। ये क्या रहता है आपका ये बेटा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वही आपकी फाइनेंशियल मार्केट हुई ना, जहाँ पे आपकी ट्रेडिंग होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की, जहाँ पे आप ये शेयर्स को सेलिंग एंड परचेजिंग करते हो, दैट इज योर फाइनेंशियल मार्केट, इजंट इट? Yes, ma'am. ठीक है, सो दैट इज द फाइनेंशियल मार्केट। देन कमिंग ऑन टू द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लाइक यू कैन से द फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, उसमें क्या रहता है, it is basically a formal obligation that entitles one party to receive payment कब एंड शेयर ऑफ अनदर पार्टी। आई मीन बेसिकली कैसे रहता है बेटा, कैसे लोन्स रहते हैं, ठीक है, जिससे आपको फंड्स मिल सकते हैं, स्टॉक मार्केट से मिलेंगे, बॉन्ड से मिलेंगे, सो दीज कम अंडर द टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए। एक तो अगर हम कैसे देखते हैं, लिक्विड होना चाहिए, ठीक है, कि वो हमें इजीली अवेलेबल है। देन इज द कोलेट्रल, डिड यू रिक्वायर्ड एनी सॉर्ट ऑफ अ सिक्योरिटी टू प्रोक्योर दैट लोन, then you have, I mean, what type of a tax benefits, so these are basically the general rules which we follow. Then financial instrument में बेटा दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, एक होता है आपका डेट और एक होता है इक्विटी। नाउ व्हाट इज अ डेट? डेट क्या रहता है बेटा? डेट क्या रहता है बेटा? You promise that okay, after a certain time I'll pay you this much amount, so that is your debt instrument, that you are giving them a promise, like after the fulfillment of this time period I'll give you a promise that I'll pay you this much amount, so that is your debt instrument. आप किसी से लोन लेते हो, आप उसको एक डेट इंस्ट्रूमेंट देते हो कि आफ्टर दिस मच अमाउंट आई विल पे यू माई प्रिंसिपल अमाउंट, और मैं हर महीने आपको इतना इंटरेस्ट देने वाला हूँ, दैट इज योर डेट इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम बोलते हैं बिल एंड बॉन्ड्स। ओके, then come the equity instrument. So equity means the claim to the shares. Basically equity here means like जो आपकी शेयर फंड्स रहते हैं, सो दे रिप्रेजेंट बेसिकली योर वोटिंग राइट्स। ठीक है, अभी जब भी हमारे पास किसी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स रहते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स रहता है। ठीक है, अभी हमें पता रहता है ना इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, हमारे कंपनी के Shareholder. ओनर। Yes, they are the owners of the company. Then the last thing that is there is the financial services. So what is the financial services mean? See, whenever you have to thought of, okay, I have to invest in stock market or either in any financial other thing. So what we take the services of various things, various financial services. We take the usage of that. Those are known as the financial services. Basically, this you can say it is basically what they do is they bridge the gap between the lack of knowledge of investor अबाउट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ओके, आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज नहीं है तो आपने बैंक पे रिलाई किया कि ठीक है बैंक मेरे को इस चीज में हेल्प करेगा, बैंक मेरे बिहाफ पे फंड्स में इन्वेस्ट करेगा, सो दैट इज देयर फाइनेंशियल सर्विसेज जो बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, दैट इज नोन एज अ फाइनेंशियल सर्विसेज। देन इज द क्रेडिट रेटिंग। बहुत सी कंपनीज की हम क्रेडिट रेटिंग देखते हैं ना उसमें इन्वेस्ट करने से पहले, सो दैट आल्सो कम अंडर द टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज। देन इज अ डिपॉजिट इंश्योरेंस। ठीक है, सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक फंक्शन रहता है, वो कौन करता है? अभी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही करते हैं ना बेटा, ठीक है ना, सो दैट इज द थिंग विच इज डन बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ओके, is it Yes, clear? ma'am. Okay, then come like what are I'll tell you one thing. So I think I have this much. I have the PDF with me. What I want to brief you about the instruments. Like the first thing that I have told you, what is a debt instrument, or the you can say the equity instrument. Okay. So financial services are also being. I'll explain you like how they work. Okay. But in Indian financial instruments, I mean, अगर मैं आपको इसी में दिखाऊं बेटा, देखो बेटा ये चार्ट दिख रहा है आपको,
ठीक है। अभी देखो बेटा, इसमें हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में उसने क्या लिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेटा इंडिया में कौन से होंगे? वही सेम क्लासिफिकेशन रहता है, एक तो बैंकिंग रहते हैं, एक नॉन बैंकिंग रहते हैं। ठीक है। इन नॉन बैंकिंग जो इंडिया में मेन जिनका नाम आते हैं वो कैसे रहते हैं, जैसे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आ गई। अभी अगर आप देखो हाउसिंग के लिए रहते हैं ना, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, सो दीज आर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं। देन व्हाट आर द फाइनेंशियल मार्केट्स? फाइनेंशियल मार्केट बेटा दो तरह की होती है, हमेशा याद रखना। एक होती है मनी मार्केट, एक होती है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट आपकी क्या होती है? शॉर्ट टर्म, गुड, वेरी नाइस। एंड व्हाट इज कैपिटल मार्केट? लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। अभी इसका एग्जांपल दोगे? ठीक है, मनी मार्केट इज बेसिकली विच इज शॉर्ट टर्म, एंड द कैपिटल मार्केट इज व्हेन वी रिक्वायर फंड्स फॉर द लॉन्ग पीरियड वी इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट। ठीक है, कैपिटल से ही समझ में आता है ना बेटा कि कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो लॉन्ग टर्म की रहेगी, तो उसके लिए हमें कहाँ से फंड्स लेते हैं, कैपिटल मार्केट से लेते हैं। ठीक है। अभी इसमें अगर आप देखोगे प्राइमरी मार्केट में ही, इसमें दो तरह के रहते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट होता है जब हम बेटा नया शेयर इशू करते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, दैट इज फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकेंडरी मार्केट होता है लाइक ट्रेडिंग इन द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ओनली, जो शेयर्स आपके ऑलरेडी मार्केट में हैं उसको हम बोलते हैं क्या, आपके सेकेंडरी मार्केट। ओके, so these are the basically the various types of the markets which are prevalent in India. Then come the financial instruments. So financial instruments में बेटा कैसे रहेगा आपका, डेट और इक्विटी। इसका तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया ना, डेट में कैसे आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, देन यू डिवेंड डेट मतलब जो आपका डेट का पोर्शन बताता है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आई विल एक्सप्लेन वन मोर थिंग, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Okay, financial services which we include in over in India is like merchant banking, leasing, hire purchase. So these are the things which come under over these things. ठीक है। अभी मैं कल बेटा जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लूंगी ना, मैं उसमें आपके सारे बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनीज के वो लेने वाली हूँ रोल आपके। उससे पहले मैं आपको एक फाइनेंशियल मार्केट का एक टॉपिक बताना चाहती थी। आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट लाइक वेयर आई हैव रेड दैट। Just give me a second, I'll explain you like what is exactly required for you people. Okay, how many of you know about like what is a derivative? Derivative क्या होता है बेटा? डिवेंचर। नहीं, derivative is not debenture बच्चे। Anyone else? हायर परचेसिंग में क्या होता है? हायर परचेसिंग में क्या होता है? मींस कंसेप्ट क्या है हायर परचेसिंग? वो इसमें नहीं है बेटा, हायर परचेजिंग तो नहीं है, but अभी although I'll explain you, but what I am asking you at this time is like what is this बच्चे? अभी फाइनेंशियल सर्विसेज में आपने बोला तो इसलिए। हायर परचेजिंग, अच्छा वो हायरिंग सर्विसेज था बच्चे, ये नहीं, हायर परचेजिंग नहीं है वो, HIR ही है बेटा, वो हायर नहीं है वो। बट हायर परचेसिंग कंसेप्ट होती है ना? हायर परचेजिंग कंसेप्ट नहीं होती बेटा, वो सर्विस होती है, कंसेप्ट नहीं है वो बेटा, वो सर्विस है। जैसे क्रेडिट रेटिंग की सर्विसेज रहती है वैसे हायरिंग की सर्विसेज रहती है, वो है बेटा वो। ओके मैम। ठीक है, वो बोल रही थी मैं उसमें। Okay, now tell me, what are the, you can say when we find out the banks, what are the various functions of banks? What are the functions of a bank? प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ बैंक क्या होता है? ये तो 11th में ही पढ़ा देते हैं, फंक्शन ऑफ अ बैंक। नहीं भी पढ़ा तब भी पता है बैंक आपको क्या करता है। टेल मी। टेल मी। इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट और ओके,
Anyone else? बैंक का तो सबको पता होना चाहिए. You are in MBA second year. I mean, what does bank do for you? Providing facility to foreign exchange to customers. Okay. What else? What else? Loan. Okay. What about rest of you? Tell me, what is the function of a bank, बच्चे? Granting loans. Okay. Main function क्या होता है बेटा बैंक का? Saving and deposits. Yes, that is the primary Deposit. function. Whenever somebody asks you what is the primary function of a bank, that is accepting deposit and giving loan. That is the primary function of a bank. Always remember. बैंक स्टार्टअप इसी पर्पस के लिए हुए थे ताकि वो लोन प्रोवाइड कर सके. ओके. द प्राइमरी फंक्शन फॉर विच द बैंक वर बीइंग एस्टैब्लिश्ड विद द you can say the clear example was that they have to provide you the loans and they have to accept the deposit from the person who have the surplus fund. That was the primary function of any bank. Okay, that was a purpose for which these banks are being set up. So then the rest of the function which you say like these are known as the secondary functions. Secondary functions में कैसे है, जिसमें bank as an agent deal करता है. Like how? Like they collect the basically the payment and collection of checks, and then you act as a trustee or executor of something. Then you basically provide a promissory note on the behalf of your customer. Like in case of a default, you are there, and if they are not able to pay that amount, then you will be able to give that amount back to the bank. Then the bank will be there for that person. Promissory note रहता है ना कि ठीक है, अगर आपके behalf पे आपका बैंक आपको एक promissory note देता है कि ठीक है, I promise on behalf of this person, in case of default of the payment, I'll pay you the amount which is being required to be paid by this person. So that is known as the promissory note services which are being given by the bank. Then अभी और क्या रहती हैं आपकी और क्या बैंक प्रोवाइड करता है? लॉकर लेते हो आप लोग या नहीं लेते हो? लॉकर रहता है ना? Yes, ma'am. ठीक है ना? Yes, ma'am. Yeah, so that is for your safety purposes. You go and find out, okay, I have to keep my gold with the bank so that it is being secured. So that is known as the basically a function of a bank. Then is one more function, like as I told you, that the bank on behalf of you invest in the various financial securities. So that is also a function of a bank or not? So these are basically the functions. But अगर आपको कोई भी कभी primary function पूछेगा ना बैंक का, that is accepting money and depositing of that money. Okay, that is accepting money and providing you with the loans. Is it clear? Yes, ma'am. Yeah. Okay, then as I told you, like there are capital market as well as there is the money market. So the money market, उसका कैसे रहता है? Time period बहुत कम रहता है. Generally, if you find out the money market, the funds are being provided for less than 1 year. But in case of the, you can say this capital market, the loan is being provided anything that is more than 1 year, that is considered under the concept of the capital market. Okay. Yes, ma'am. So primary market is basically like we can classify the financial market into two aspects. The first thing, एक तो हम classification लेते हैं primary market और secondary market की, एक हम लेते हैं बेटा money market and capital market की. So what we do in this unit, I'll explain you each and everything with the PDF, so that this first unit is quite lengthy because हम जो इससे आगे करने वाले हैं second, third, fourth unit, that brief description will be given over here only. अभी कैसे हमारा सेकंड यूनिट है जो पूरा मनी मार्केट पे है, और जो थर्ड यूनिट है वो कैपिटल मार्केट में है. बट आपको पूरा क्लियर थोड़ा नॉलेज इसी में आ जाएगा कि मनी मार्केट क्या है और आपका कैपिटल मार्केट कैसा है. ठीक है. अभी प्राइमरी मार्केट की मैं एक बात बताऊं, मुझे अगर आईपीओ है, ओके, तो आईपीओ किस में आएगा? प्राइमरी में आएगा, सेकेंडरी में आएगा बेटा? आईपीओ, व्हाट इज आईपीओ? सुनते ना, कंपनी का आईपीओ आया, कंपनी का आईपीओ आया. व्हाट इज आईपीओ? Initial public offering.
ओके, तो उसमें बेटा वो प्राइमरी मार्केट में आएगा या फिर सेकेंडरी मार्केट में आएगा? second market. Primary market, always remember, because it is for the very first time that a share is coming into the market, that always come under the heading of the primary market. I told you very clearly, primary market में जब हम कुछ नया शेयर इशू करते हैं, that come under the heading of बेटा primary market. Secondary market में हमारा वो आता है जो शेयर already issued होता है, जैसे अगर आज के टाइम में आप रिलायंस के शेयर लेने गए, that will come under the heading of the secondary market. Okay, ठीक है? यस मैम। हाँ, और एक बेटा आपको मैं इसी में समझाऊंगी, दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का अगर सिंपल डेफिनेशन जो आपको समझ में आता है, डेरिवेटिव इज समथिंग विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सम अंडरलाइंग एसेट। ओके, तो डेरिवेटिव का ये एग्जांपल रहता है, यू कैन से बेसिक डेफिनेशन रहता है डेरिवेटिव का। उसमें आगे आपको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, व्हाट इज एन ऑप्शन, व्हाट इज अ फॉरवर्ड, व्हाट इज एन कॉन्ट्रैक्ट। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको पूछी जाती हैं। व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज, मैं आपको ये विद एग्जांपल समझाऊंगी, बिकॉज वो अभी नहीं, आपको थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर तक ये रहने वाला है, एंड इवन इन द इंटरव्यूज, what is a call, what is an option, these are the things which are being regulated. Okay, so foreign exchange market का हम पूरा ये लर्न करके लेंगे। स्टॉक मार्केट का मैं आपको वो बना दूंगी पीडीएफ में, सेम मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है? I'll tell you what is a cryptocurrency market. All of you do one thing, search onto the Google, that is cryptocurrency market. Crypto, CRYPTO, cryptocurrency. What is that? एक्सचेंज ऑफ डिजिटल करेंसी। अच्छा, फिर आगे कैसे काम करती है बेटा, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये एक बार सर्च करना, ठीक है? व्हाट इज क्रिप्टोकरेंसी, ठीक है? क्रिप्टोकरेंसी, एंड ये सब कैसे रहता है, ये स्मॉल उसमें आते हैं बेटा। आपको ये आपको अभी जब एमसीक्यूज आएंगे ना, उसमें यही आएगा, क्रिप्टोकरेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है, हेजिंग क्या है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच विल बी देयर। मैम इट्स रिस्की, या टेल मी। रिस्की है ना क्रिप्टो करेंसी में मैम इन्वेस्टमेंट करना? जस्ट अ सेकंड जयश्री, या नेहा, टेल मी। I have also seen in the news. Neha, your Ma'am, voice your is not voice is audible. breaking. My voice is breaking. Ma'am, can you hear me? Yeah, I can hear you, Neha. Please tell me. Yes, ma'am. मैं बोल रही थी कि ये जो बिटकॉइन है वो क्रिप्टो करेंसी में ही आता है ना? हाँ बेटा, And उसी it's में a bit आता है। risky because I Yes, have seen in the news that people have gone through with the loss. Yes, but the thing is, And I think it's but it is a very you can say a new concept that has come into emergence in 2009 only. Okay, so it is basically, you can say, a decentralized cryptocurrency. जब centralized नहीं रहता, decentralized करते हैं, तो उसमें ये आता है Bitcoin, ठीक है? But you need to understand like why it is so risky and all those things. So although it will be there for the MCQ aspect, but since it is a new thing that is into the market, that is cryptocurrency, Bitcoin, so these are the things which are going to be asked by you. Okay, either in the times of the, you can say, the interviews or so. So I just want you people to just understand like what is a cryptocurrency and what is a Bitcoin. See, for financial management, which I have taken up with the financial management, which I have taken up with your lectures, is okay. But the thing is, अभी ये जो chapters रहते हैं ना बेटा, ये theory aspects, आप खुद से पढ़ोगे ना, उतना आपको समझ में आएगा। एंड द थिंग इज, डोंट क्रैम दो थिंग। क्रैमिंग के लिए कुछ जरूरी नहीं है, मैं आपको एक दिन में ऐसे नोट्स बना दूंगी, आप पढ़ लोगे ना, आपको वैसे ही 50 मार्क्स का होगा ना, तो आपको वैसे ही मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। नोट्स में ऐसे दे दूंगी, बट द थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड इट फॉर द लॉन्गर थिंग। सो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल इज, आई मीन, any one of you can take the initiative, who can brief us about like what is a cryptocurrency and a Bitcoin with just a small PDF or something. Any one of you can take that initiative? Any one of you? नेक्स्ट लेक्चर में जो वो बताने के लिए रहेगा रेडी, मुझे वो बच्चा चाहिए आप में से। एनीवन? क्रिप्टोकरेंसी एंड अ बिटकॉइन।
Although I'll obviously brief, but I want someone to take the initiative. Any one of you? Ma'am, actually Yeah. not knowing much about Bitcoin and cryptocurrency, but we can search in Google and we'll tell Yeah. you the Yeah, of background course. about it. Yeah, of course, that will be perfectly fine. But what I want is, I don't want a one-liner. I want you to, I mean, just give me an explanation. I mean, Yes, ma'am. Some summary. yeah, something like why it happened. I mean, why it was very risky, and what is the latest news about that. So that is the thing. Let's make the thing interactive. Okay, the syllabus I'll complete. Don't worry about that. But I want you people to take the initiative and just give me a brief about like how these things work. Okay, and then we can only first unit will take some time, but I mean next units are very not very lengthy, so we can just fasten up with the things with that. So next time when I'm conducting a lecture, so Neha, maybe you can tell us about like what is a cryptocurrency and what is like a Bitcoin. Okay, then I'll take up. Yes, ma'am. Yeah, okay. And on Sunday, most probably my lecture will be there. And what I'll do is I'll complete with this unit. Okay, first unit will be completed in my next lecture only. And that will be for 2 hours. My lecture will be there for 2 hours. So we will complete with the first unit, or most probably we can also start with the third unit by that time. Okay. So that we Okay, ma'am. can, yeah, because your exams may be in the first week of August. Before that, I'll complete the syllabus for you people. Yeah. Okay, fine. We'll meet on Sunday. And in case of any issue in today's lecture, we can have a discuss at that time. But although the things which are being discussed are very, general things, not, you all people know about like being a finance student, or a MBA student, you know about like how these financial systems work in an industry or in any economy, and how we basically is the role of those financial institutions. Okay. Okay, ma'am. Okay, then see you all on Sunday. Bye, ma'am. Thank you. Thank you. Okay, Thank you, bye. ma'am. Thanks a lot. Yeah, great. Bye.